یہ نہیں مطلب میرا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ کتاب ہے ہی نہیں جب اردو میں، تو پھر نہیں، میرا صرف اتنا ہی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ جو ہے نا آپ پڑھ رہی ہیں استفا، شاید آپ غلط پرونونس کر رہی ہیں لفظ. مجھے لگتا آپ ہے اس کی پکچر مجھے اصطلاح بھیج دو، ہوگی. وہ تنزیلہ پکچر بھیج آپ دے رہی ہے. ان کی نا دونوں کی ڈیفینیشن اگر بیان کر دیں تو شاید ہمیں بھی بات سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، شاید سمجھ آ جائے کہ یہ ایگزیکٹ ہے کیا ٹرمینالوجی. میرا پکچر خیر، بنے گا یہ پیچھے. ہاں یہ پکچر لے کے دکھا دیں. بہرحال یہ لفظ کوئی لگتا صحیح نہیں ہے. آج 21 تاریخ ہے نا. میں لکھ دیتی ہوں کیسے لکھا ہوا ہے. اوکے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائپنگ میں غلطی ہوگی ہو. ٹھیک ہے، آپ ڈیفینیشن پہ مطلب ڈیفینیشن پڑھو تو ہم لوگ گیس کر لیں گے. یہی ہے کہ ابتلا کی تھی نا آزمائش والی، اور اس کی ہے سننے والی، جو نہیں سننے نہیں، جو اپنے اوپر کرنے والی، اوپر. اوکے چلو رہنے دو، کوئی بات نہیں. نہیں، آپ بہت اچھا بتا رہے بیٹا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لفظ ہے یہ. وہی استفا. ٹھیک ہے، جب آپ کو پاسبل ہو تو پھر مجھے بھیج دینا اس کی پکچر. ہاں اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں. یہ ایسے اگر میں نے لکھا ہوا تو یہ بھی نہیں نا آپ کو سمجھ آ رہی نا. آپ نے میسج لکھا نیچے کوئی؟ ہاں جی. اچھا میں دیکھ رہا ہوں. یہ صرف خاص لوگوں کو ہوتی ہے، جیسے میرا خیال ہے جیسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. وہی الاستفا. لیکن خیر یہ تو وہی کی ہو گئی. اور پھر کیا کہتے ہیں دوسری جون سی ہے استفا ہے یا استفادہ ہے؟ استفادہ. اچھا آپ کا مطلب ہے وہاں ٹائپنگ نہیں ہوئی ہوگی. ہاں یا استفادہ ہو سکتا ہے تو یا استفادہ کا کیا مطلب ہوگا؟ استفادہ تو فائدے کو کہتے ہیں، یا پھر فائدہ. استفتاء ہو سکتا ہے. استفتاء وہی کے بارے میں اگر لفظ ساتھ لکھا ہوا ہے نا استفا تو، استفتاء. اور اس کا مطلب پھر ہوگا اوپر جانا. نہیں، استفتاء ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا. تنزیلہ یہ مرزا صاحب کی کوئی رائٹنگ ہے؟ ہاں جی یہ بک کا کوئی نام لکھا ہوا ہے اوپر؟ ہاں جی. بک کا نام کیا ہے؟ لیکن یہ انہوں نے جنہوں نے یہ لکھی ہے نا، انہوں نے یہ برائن احمدیہ کی ہی میں نے دیکھا ہے یہاں پیچھے انہوں نے ادھر سے ہی یہ لیا ہے، ساری چیزیں ادھر سے ہی لی ہیں. نہیں تو وہ انہوں نے کوئی ریفرنس تو دیا ہوگا نا کہ برہائن احمدیہ کون سے اس کے حصے میں سے ہے. نہیں دیا ہوا. ابراہیم احمدیہ سے لیا ہے. ہاں جی ادھر سے ہی ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں نا سارا وہی کا. اور جو آپ جہاں سے پڑھ رہی ہیں وہ فقرہ پورا پڑھ سکتی ہیں؟ کیا فقرہ ہے لکھا ہوا؟ اگر ڈچ میں لکھا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں کیا آپ پڑھ رہی ہیں؟ وہ تو یہی تو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے نا. چلو کوئی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں، اس کو رہنے دیں. بے شک میں یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ دیکھ کے نا، یہ میرے پاس کتاب بھی تھوڑی سی اولڈ ہے تو شاید وہ نیو والی اگر ہوئی تو وہ ادھر بہتر ہوگی. وہ میں نے دیکھا بھی کمپیوٹر میں، انٹرنیٹ میں مجھے نہیں ملی. اگر آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی دقت آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لفظ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یا مس پرنٹ ہو گیا ہے، یا وہ لفظ جو ہے وہ ہاں جی یہ ہو سکتا ہے.
ठीक है, और कोई मेरे साथ आपने सवाल करना है तो कर लें, अगर नीचे उतारना है तो नीचे उतार दें। मैं थोड़ी ड्राइव करूँगा, 10-15 मिनट में घर पहुँचूँगा इंशाल्लाह। बाद में बात हो सकती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेशक आप घर जाएं आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कर दिया जी, जज़ाकल्लाह फॉर हेल्पिंग। आपका भी शुक्रिया आप आए। अच्छा, ट्रू एमडी ने नीचे लिखा है वहीयुल इस्तिफा। हाँ, तो ये हो सकता है कि इसमें सफाई का भी जिक्र हो, हजरत खुद से इस्तिफा। सफाई करने वाला हजरत इनको ऊपर ले लेना, ये समझाएं फिर। वहीयुल इस्तिफा, उल इस्तिफा। ठीक है, अच्छा खैर कोई बात नहीं, आगे बताओ और क्या लिखा है। तंजीला समझा क्या अब तक हमने जो किया है? अच्छा ये बता दें कि सारे स्टडी सर्कल के पास स्ट्रक्चर बन गया है चारों बुक्स का। ब्राइन ने एम दिया 1 2 3 4। स्ट्रक्चर बनना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर तो अभी मैंने तो नहीं बनाया है वो, लेकिन आपकी वो स्क्रीनशॉट कर ली थी। नहीं लेकिन उसमें ये तो होता है कि आप ये जो कह रही हो, जो पहले आएगा तो फिर 4 कैपिटल वो चैप्टर आएंगे और फिर इश्तिहार आएगा, और वो तो ये एक मैं उन्होंने कह रही। हजूर ने बता दिया था ना कि इस तरीके से इस तरह बुक लिखी जाएगी, हाँ जी, लेकिन रियल बुक के अंदर का एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए, और वो बिल्कुल हमारे अगर फिंगरप्रिंट टिप्स पे होगा, फिंगर टिप्स पे होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, आसान। कौसर अभी आप घर पे हैं या बाहर हैं? मैं घर पे ही हूँ, कॉल आ गई थी माजरत के साथ। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना हमें चाहिए होंगे 4 पेज, और हर पेज बेसिकली 5 चाहिए होंगे, लेकिन हर पेज के ऊपर जो है ना हमने ये सोचना है कि ये ब्राइन एम दिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अलग अलग, क्योंकि फिर जब कोई चीज़ आएगी तो हमारे पास इनफ स्पेस होना चाहिए कि हम उसको फिल कर सकते हैं। और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। सबसे कोई भी बुक के अंदर जो है ना या कोई भी हजूर की बुक के अंदर जो है ना उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं, उन हेडिंग्स को और उसके अंडर अगर कोई सब हेडिंग है तो वो नोट कर लें। फिर जब हम उसको नोट कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये बात हो रही थी, और जो अगर कोई स्पेशल बात हुई है तो वो उसके अंडर लिखते हैं कि हाँ जैसे ये बात हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो ब्राइन ने एम दिया 1 उस पेज को दे दिया। अगर आप लोग साथ साथ बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बन जाएंगे, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। अगर हिम्मत है तो इसको कर लें, क्योंकि फिर ये होगा कि जब हम लोग अगली बुक्स पे चले जाएंगे तो ये ज़रा याददाश्त कम होती जाएगी, और ये समझें कि एक बेस है। हजूर ने इसका बहुत रेफरेंस दिया आगे जाकर भी। मुझे तो कर लेते हैं, लेकिन करना क्या है मुझे समझ नहीं आई। ओके, वी नीड टोटल 5 पेजेस, 5 Okay. पेजेस चाहिए हमें। हर पेज 1 ब्राइन ने एम दिया 1, पेज 2 ब्राइन ने एम दिया 2 3 4, इस तरह। ओके, ठीक है, फिर मैं पेज ले आऊँ दूसरे कमरे हाँ से। 5 पेज, आप 5 पेज Okay. लेकर आना। 4 Okay, बुक्स sir. हैं और वो 5 बुक्स ना, नहीं समझ आ गई 4 बुक्स हैं, और हाँ एक जी। पेज होगा कैलकुलेशन का। उस पेज के ऊपर आपने सारी कैलकुलेशंस और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डालने हैं। तो आपके पास हैं इनफ इस वक्त हाँ एम्प्टी जी। 4 पेजेस? या ठीक है, सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग डाल लो BA1। BA1 मतलब बराइन हमारी- अहमदिया 1 हाँ, अव्वल। तो बाद में हमारी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, उनको भी आसानी हो जाएगी कि उन्होंने जो है वो नोट्स कैसे लेने हैं, और फिर इस तरह ना। तो और बाद में हमें फिर हर दफ़ा बुक खोल कर वो नहीं, हमें पता होगा कि हाँ जी इसमें ये इंपॉर्टेंट बात हुई है, बात हुई है। तो सर अभी आप भी अपने नोट्स ले आएँ। अच्छा, उसके बाद ब्राइन ने एम दिया 1, और आगे जो है डेट लिख दें 18। कौन सी थी? 80 हाँ जी 80 थी।
80। 80 ज़बरदस्त। और जब ब्राइन अहमदिया 1 खोली तो क्या क्या पेज नज़र आया सबसे पहले? कौसर अभी आप ले आई हैं अपने नोट्स, तो आप भी ज़रा शामिल हो जाए साथ। अब आप बुक को जान पहचान कर रही हैं ना बुक से। मुझे बस सिर्फ 10 मिनट दे दें, मैं सुन रही हूँ साथ साथ। एक रोटी रह अच्छा गई अच्छा है, आ रही हूँ फिर। अच्छा रोटियां बन रही, ठीक हो गया। वेरी अब मैं गुड। इसको निशान लगा रही हूँ। तो 3:37 सालन क्या है? सालन क्या भाई? उन्होंने म्यूट कर दिया, मैं रोटी डाल के माश की, थोड़ी माश की दाल, उसको भर के बना रही हूँ रोटी में। वाह जी वाह। मैंने आज तक नहीं यम्मी हो बनाई। जाए। आज बनाई दो। पेज ले आए हो? हाँ जी, मैं ले आई। हाँ जी। आपका पहला पेज है ना, वो है BA1 का, ब्राइन अहमदिया 1। उस पेज के हाँ, ऊपर आपने किसी और किताब का कोई भी नोट नहीं डालना। ओके। या आपका दिमाग में क्लियर हो कि हाँ ये जी, किताब है, फाइल बना एक पेज लेते नहीं। ना, फाइल बन जाएगी ना, फाइल बना हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हम BA1 ऊपर लिख दें, जी अगर बाद में कोई हाईलाइट करना है तो वो भी अच्छा हो जाता है। जी। जब हम लोग ब्राइन अहमदिया 1 खोलते हैं तो ज़्यादा पहले टाइटल पेज आता है, फिर उसके बाद एक आता है पैगाम। नंबर 1 पे आता है कि 2008 में ये कंप्यूटराइज्ड हुई है। 2000 में 8 में ब्राइन अहमदिया 1 ऊपर हजूर ने कब लिखी? 1880 में। हाँ जी, और 2008 के अंदर ये हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, ओके, 2008 में। लेकिन ये कंप्यूटराइज्ड तो हो गया। डिफरेंट है ना, अब जर्मनी में तो अलग है। वो कोई बात नहीं। कंप्यूटराइज्ड, हाँ वो आपको देखना होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। ट्रांसलेशन है ओके, ना बाकी तो। सही है। आप शुरू कर लो। हेडिंग जो आएगी इसके बाद वो है पैगाम, मैसेज। हाँ जी। ये ये भी ये 2008 में किताब ये शाया हुई ना, ऐसे हाँ, लिखना है ना। लेकिन कंप्यूटराइज्ड हो गए, हाँ जी, कंप्यूटराइज्ड हुई है। फिर हम आगे जाते हैं तो एक पैगाम है, हेडिंग है पैगाम। आपकी हो जाएगी ये हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर पैगाम। 2, पैगाम। और ये पैगाम किसकी तरफ से है? ये खलीफा खामिस की तरफ से है। इतना अच्छा, ये तो मैंने सही तरह से पढ़ा भी नहीं। ये पैगाम के अंदर ना हजूर ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ उनके ऐसे हैं कि जो हाईलाइट करके हम रख लेना, उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि जो शख्स हमारी किताबों को कम अज़ कम 3 दफ़ा नहीं पढ़ता, उसमें एक किस्म का किबर पाया जाता है, ओके। अपने आप को कुछ समझता है वो। सो ये हेडिंग आ गई पैगाम, और ब्रैकेट में डाल दें उसको कि खलीफा खामिस की तरफ से है। ठीक। पैगाम लिख के ना। हाँ, हमारे पैगाम और आगे ब्रैकेट में। आपको मैं बताऊं कि जर्मनी में कब बना है? जर्मन में 2019 में। गुड। इसका मतलब है आपकी पहली हेडिंग हो गई 2019 कंप्यूटराइज्ड, यस। दूसरी हेडिंग हो गई मैसेज खलीफा खामिस की तरफ से, और फिर हमारे पास थर्ड हेडिंग आएगी अर्ज़ नासिर। नासिर कहते हैं, नासिर कहते हैं, नहीं पता। नासिर जो बुक लिखता है उसने पब्लिश किया ना, पब्लिशर की तरफ से नोट है। यानी किब्र पाया जाता है, तकब्बर पाया जाता है। सही हो गया। बड़ा समझता है अपने आप को। ओके। फिर थर्ड हेडिंग है अर्ज़ नाशिर, एंड फोर्थ इज पेशे लफ्ज़। तो आप भी ट्रांसलेट करके ना डालते जाओ। जे आंसर है नाशिर, अर्ज़ नाशिर, अर्ज़ अर्ज। ये वो ओके, नाशिर कुछ कह रहा है, पब्लिशर की अर्ज। तरफ से नाशिर। ओके ओके। एंड देन फोर्थ है, थर्ड लिख लो फिर बताओ, फिर हम फोर्थ करते हैं। जी, थर्ड लिख लिया, अर्ज नाशिर। फोर्थ है पेशे लफ्ज़।
अब ये किसका है पेश लफ्ज? पेशे लफ्ज को क्या कहेंगे, ये मुनीर उद्दीन शम्स साहब ने लिखा हुआ है। ओके, मेरा फिर 5वां भी है डॉइच में, वो क्या है? जो ये उर्दू की बहराइन अहमदिया की जो कवर है ना, उसकी ट्रांसलेशन। ओके गुड। अब हम असल आ रहे हैं तरतीब। नेक्स्ट हेडिंग आती है तरतीब की। ओके चीज, अल्लाह हाफिज। चीज चीज जो कहता वही होता है। तरतीब का पेज आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये बनाए मतलब नंबर 1 2 3 4 करके लिखा होता है। बस तरतीब लिख देंगे तो सही है। तरतीब के अंदर ना 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से पेज पे कहाँ पे वो शुरू हो रही है। लाइक हिस्सा अव्वल पेज 1, हिस्सा 2 पेज 53। तो ये हम वहां से देख सकते हैं कि पेज नंबर। एक सेकंड, यहाँ मैंने अपना नाम देखा नीचे, लेकिन मुझे तंजीला शाहिद, ये क्या है? शाहिद शाहिद, तंजीला शाहिद चिल्ड्रन शाहिद बता रही है। शायद उन्होंने लिखा है ज़ाइन जिल्द शाहिद 1 सफ़ा 246 ता 245 से बता रही थी कि वही की इकसाम, वही इल्हाम जो आप कह रही थी ना, तो उन्होंने ये बताया आगे से कि आप वहां से उस पेज से बता रही थी। जी जज़ाकल्लाह अंका। ओके जज़ाकल्लाह। शायद ठीक हो गया। या तरतीब हो गया। हाँ जी, अब 1 हमारे 2 पास 3 असल 4 वन। हाँ, अब ये जो तरतीब के बाद जो है ना, ये तकरीबन हर किताब में सेम ही तरीका होता है। तरतीब के बाद हमारे पास समझो नई नंबरिंग शुरू होती है। जो पहले आ गया वो किताब का हिस्सा नहीं है। और तरतीब के अंदर नंबर 1 हेडिंग है तारुफ की, इंट्रोडक्शन। नंबर 1 में ना तारुफ। तारुफ। इसका पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम बाद में खपते रहेंगे। तारुफ, अच्छा तारुफ के लिए उन्होंने नंबर दिए ही नहीं है। वो है दूसरे तरीके के नंबर है। 1 2 3 पेजेस का तारुफ है। चलो ऐसे लिख देते हैं 3 पेजेस, क्योंकि अभी जब बुक शुरू होगी ना फिर 1 2 3 4 होगा। मैं तो ये क्या क्या आप लोगों के पास लिखा हुआ है? वो आपको एक पूरी बता रही हैं, जैसे एक इजी कॉपी बना रही है ना। जब भी आप देखेंगे आप फटाफट से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हाँ जी, नहीं वो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतना ज्यादा क्यों आप लोगों के पास लिखा हुआ है। अब आपके पास क्या आ रहा है? मेरे पास पहले सिर्फ है एक ये जो आपने कहा था कि खलीफा, ये जो पब्लिश हुआ है ना, आ गया पब्लिश, हाँ जी, पब्लिशर का मैसेज। हम्म एक सेकंड, वो एंटीवायरस वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। हाँ जी, ये पब्लिशर का, फिर खलीफा हामिस का मैसेज, उसके बाद वो जो बुक्स, खलीफा हामिस का काफी लंबा मैसेज है वैसे, और फिर वो बुक का जो सी है वो ट्रांसलेशन जर्मन में, ठीक है। और फिर शुरू हो गया इश्तिहार से। मेरा ख्याल है ये इश्तिहार ही है। हाँ जी, ये इश्तिहार है फिर अनाउंसमेंट। हाँ जी, ठीक है, वही जो सही है। वो फिर ये हसन बहादुर का और खलीफा सईद मोहम्मद का, और ये ना वो जो सी उन्होंने 50 नहीं लेनी थी, और फिर
ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छा, सही यहाँ है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो गई है। ठीक है, अब हमारा इसके बाद आ रहा है तारुफ तंजी वो लुबना तारुफ लिख लिया, तारुफ के बाद है तारुफ के अंदर ही ना छोटा सा कहीं लिख लो कि बराहीन अहमदिया का असर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी या बटालवी साहब के साथ, क्योंकि ये इसलिए नोट डाउन किया है क्योंकि अहमदी इसके ऊपर इसको पेश करते हैं कि देखो जो बदतरीन मुखालिफ हो गए थे उन्होंने भी कितना अच्छा लिखा रिव्यू, और गैर जमात कहते इब्राहिम हैं कि अहमदिया का का असर असर। ओके, और ये और असर नाम के क्या नीचे बताया हेडिंग था? है बटालवी साहब, बटालवी बटालवी। तो इनका काफ़ी जिक्र आएगा इसलिए मैं ये भी नोट कर लिया। अब नंबर 2 हेडिंग आएगी ये बटालवी ऐलान। साहब वही है जिन्होंने बाद में फिर वो मुनाजरा भी करना ही ऐसे करके कुछ। हाँ जी ये वही है, ओके, ठीक है। ये वही है। फिर जो तंजीला के पास है ना अनाउंसमेंट, तो हमारे पास है ऐलान, यस, और यहाँ से किताब शुरू होती है हिस्सा अव्वल में ही ना हिस्सा अव्वल में। ऐलान। जो ऐलान है ना वो यही है कि 5 रुपए कीमत थी और उसके अंदर किन लोगों ने हेल्प की और क्या था। तो ये पेज 2 से शुरू होके ऐलान पे 4 तक ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग है इल्तिमास ज़रूरी अज़ मौलिफ़ किताब। अब इल्तिमास ज़रूरी को कैसे मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है। जी सलामुकुम, मैं हाजिर हूँ यहाँ। हाँ जी, इल्तमासी जरूरी कहा है। हाँ ओके, इम्पोर्टेंट बात है, ट्रांसलेशन के लिए कह दें कि इम्पोर्टेंट बात है फ्रॉम द ऑथर। ऐसे लिखा है। जी। अब तो उर्दू लिखना भी भूल गई है, पढ़नी तो क्या हाँ, बात है, कसम से बड़ा अफसोस हो रहा आप इसको रोमन में लिख दो। वो अगर रोमन में लिखोगे फिर मुझे भी फायदा हो जाएगा। है। मैं उर्दू में लिख रही हूँ ताकि मुझे मुस्तकिल फायदा रहे। मुझे ना हो। मैंने अभी शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा जी, ये जो है ना इल्तिमास ज़रूरी, किसी को याद है इसके अंदर क्या बात हुई थी? ऑथर की तरफ से एक ज़रूरी बात थी। वो ये थी कि क्या कहते हैं 300 दलाइल पेश किए जाएंगे। हाँ, लेकिन वो इसमें जो ऑथर की तरफ से ज़रूरी बात थी कि लोग जो है पैसे नहीं दे रहे और उनको देने चाहिए, और वो उसके अंदर मोटिवेट किया था जोर ने। अच्छा, ये चलेगा पेज नंबर 12 तक, 5 to 12। और इसी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बता दिया था कि इस किताब को में क्या कुछ होगा, चाहे ये यानी कितनी भी जिल्दें हों। उन्होंने जो उन्होंने पैसों की बात की होगी वो जाहिर है जो उनके अपने करीबी होंगे उनको ही की होगी कि सबको, जैसे मसलन वो नहीं क्रिश्चियन थे। सबको, हाँ, सबको। हाँ ओके, आगे वाले जाके बताया कि एक हिंदू ने भी हेल्प की, लेकिन मुसलमान वैसे हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि जो लोगों में है ख्याल वो उसमें है। अच्छा, सही। और उसके अंदर ये डिस्कशन हुई थी। तो ये जो सारी डिस्कशन हुई है ना कि किसने कितने पैसे भेजे, फॉर एग्जांपल 250 किसी ने भेजे, 75 किसी ने भेजे, और कि लोग भेज रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं। हम्म, ये पेज नंबर 11 12 तक यानी है। उनका ये मकसद था कि मैं किताबें ये लिखूंगा
मेरे पास मैं लिख पैसे चुका नहीं हूँ है, मुझे लिख चुका हूँ, मुझे पैसे दिए जाएं ताकि ताकि मैं इसको छाप कर इस्लाम की छाप कर, हक्कानियत के लिए डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी सही हो गया। अब इसके नीचे ना एक चीज़ ज़रूरी है लिखना, जो कि तंजीला को तो रट गई है। हजूर ने कहा था कि उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया था कि जो किताब वो लिख रहे हैं ना, उस किताब में सबसे पहले एक इश्तिहार आएगा, फिर एक मुकदमा आएगा। ये 4 पॉइंट्स दिए थे उन्होंने, मैं वो लिखवा देती हूँ। जी एक इश्तिहार, ये किताब होगी एक इश्तिहार, एक मुकदमा, मुकदमा, 4 फसल, फा स्वाद लाम FASAL, और एक ख़ात्मा। सो ये इस किताब में ये चारों चीज़ें होंगी, 1 2 3 4। और अब किताब में क्या लिखा था कि क्या कुछ होगा 4 चीज़ों में से? 4 चीजों में से 4 चीज़ों में से 4। हाँ जी, पहले क्या आएगा? एक इश्तिहार, एक मुकदमा, 4 फसल, एक खात्मा। ज़बरदस्त। अब 4th हेडिंग बनती है ना, इल्तिमास ज़रूरी अज़मौलफ़ किताब के बाद 4th हेडिंग, जी वो 4th हेडिंग है इश्तिहार की। सो हजूर ने कहा था कि पहले इश्तिहार आएगा, तो इश्तिहार आ गया पेज 52 तक। ओके फिर आगे मुकदमा और खातिम और 4 फसल भी हैं। अभी वो रहता है, नहीं, वो आएंगे क्या? वो हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, जब इससे आगे तो ये वाली किताब ही खत्म हो रही है ना? हाँ, पेज मतलब 52 अच्छा किताब ठीक है, ख़त्म हो गई है। हो सकता है आगे आ जाए। हाँ, और इस तरह से बराइन अहमदिया हिस्सा अव्वल फिनिश हो गए इश्तिहार के साथ ना। इश्तिहार के साथ। तो बाकी चीज़ें तो वो पब्लिशर की थी, वो थी, तारुफ था और वो प्राइस वगैरह का था। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे, हमें रिवाइज करना हो, तो बराइन अहमदिया में एक जो मेन चीज़ थी वो क्या थी? किताब का स्ट्रक्चर अजो के क्या कैसे, वो तो हमने बनाया था। और इसके बारे में कि इश्तिहार, हाँ जी, अनाउंसमेंट, यस। ठीक है, वो इश्तिहार काफ़ी लंबा था। ये कोई उर्दू मैसेज दोबारा आया, आप लोग देख रहे हो ना नीचे? हाँ मैं देख रही हूँ। हिंदू ईसाइयों पर इस्लाम की हक्कानियत साबित करने के लिए 2 इक़साम और 300 दलीलें देनी होंगी ज़िली इक़साम की। वो आई थिंक वो आगे आ रहा है। हाँ, वो इश्तिहार में ही है बल्कि। और उन्होंने इश्तिहार को रिवाइज करें तो इश्तिहार में उन्होंने कहा था कि मेरी जो 300 दलाइल हैं उसको बेशक कोई 150 कम कर दे, 100 कम कर दे, 100 दे दे, 75 दे दे, 60 दे दे। ये बाजी जो अब आपका स्क्रीन में आ रहा है ना उर्दू, ये मुझे पढ़नी आती है यकीनन। अब पढ़ के सुनाओ। ये बड़ा ज़रूरी है। ये क्या? तो हमारे ही दलाइल को नंबर वार तोड़ दे। तोड़ दे नंबर वार तोड़ दे, यानी कि नंबर वार 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे दलाइल को तोड़ना है। ओके। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब कोई कहता है कि 300 का मतलब है कसरत, 300 का मतलब कसरत नहीं है, 300 का मतलब 300 300 दलाइल। ही है। हाँ 300 का जो ये कहते हैं 3000 मिल जाएंगे तो ये इतने मिल जाएंगे, वो वाकई हमें इस बात कोई समझ नहीं आती है। हम तो वही कहेंगे जो लिखा हुआ है, 300 है तो 300 ही होने चाहिए, और उन्होंने है बिल्कुल ना? एक्सप्लेन किया है खोल के कि जो जवाब देगा वो 1 2 3 लिखेगा, प्लस उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जवाब देने के लिए ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के लिख दे, जवाब देने के लिए एक पैटर्न दिया है। लेकिन ये इश्तिहार में था अभी नहीं ना? हाँ पैटर्न है इश्तिहार में था। है। ओके ओके। उस इश्तिहार में जो है वो पैटर्न अंदरूनी बैरूनी वो भी लिखना होगा, लेकिन वो आगे भी आ रहा है तो आगे भी लिख सकते हो। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं 300 दलाइल लिखे हैं मैं दे देता हूँ, हम्म, तो उस पहला सवाल हमारा ये उनसे बनता है कि वो 300 दलाइल की जो तरीका है जवाब देने का वो उस पैटर्न पे हो रहा है। एक तो उसके अंदर होता है कि वो दलील बसीत हो, दलील मुरक्कब। लेट मी शो यू है। ऐसे कहा था हजूर ने कि जो टाइप ऑफ दलील है ना वो बसीत ऐसे लिखते हैं और दलील मुरक्कब, ठीक है। और फिर दलील बसीत के अंदर ही अंदरूनी भी हो बैरूनी भी हो, अंदरूनी भी हो बैरूनी भी हो। सो ये 4 तरीकों से होनी चाहिए। स्टेटमेंट्स को हम दलील नहीं कह सकते। और सबसे पहले ये देखना होगा कि साहिब किताब क्या कह रहा है। हम साहिब किताब से नहीं बढ़ सकते। साहिब किताब ने हमें कहा कि ये किताब एक इश्तिहार और 4 फसल और एक खात्मा। एक चीज़ और रह गई, एक इश्तिहार के बाद एक इश्तिहार के बाद एक मुकदमा, एक मुकदमा, तीसरे नंबर पे 4 फसल और चौथे पे खात्मा। खात्मा। तो हमें बराइन एम्बिया 1 हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं बराइन एम्बिया 2 पे। दूसरा 2 के पेज ऊपर ले हमें लें। दूसरा पेज ले लें। उस पर हमें मुकदमा मिलना चाहिए ना, क्योंकि इश्तिहार के बाद मुकदमा ही आता है। और ये इश्तिहार उर्दू में पेज 54 पे जाके ख़त्म होता है। जी अब नंबर नाम नहीं लेना। जी मैंने कहा अब नंबर 2 किताब। अब देखें मतलब ये है ना, इश्तिहार चल रहा है ना, ये इश्तिहार ख़त्म होता है अच्छा और साथ ही बराइन अहमदिया 2 शुरू हो गई है। अब 2 शुरू होते ही जो हेडिंग आई है ना, बराइन अहमदिया के मुखालिफों की जल्दी, इसका मतलब ये है कि उसमें उन्होंने हेडिंग में बताया है कि अभी मैंने दलाइल देना शुरू नहीं किए और मुखालिफों ने अखबारों में छाप कर कि 10,000 कमा लेंगे शुरू हो गए। और उस दिन हमारे साथ यही हुआ। हम बराइन अहमदिया दूसरी पे थे, कोई आया हमारे पास ब्रॉड पे जी और उन्होंने कहा कि बराइन अहमदिया अव्वल में ही मैं इतनी दलाइल निकाल दूंगी। जी तो फिर हमने उसके जवाब में उनसे कहा कि बराइन अहमदिया के 2 के शुरू में ही हजूर ने कहा है कि मुखालिफों की जल्दी, तो हम आपको मुखालिफ नहीं कह सकते, लेकिन इतनी जल्दी ना करें कि हजूर खुद लिख रहे हैं कि मैंने अभी दलाइल शुरू नहीं किए। जी यानी पहली किताब में जो दलाइल है वो है ही नहीं है ना? बिल्कुल, पहली किताब में मेन चीज़ क्या है? इश्तिहार। इश्तिहार है। अब हमें मेन चीज़ अगली किताब में मुकदमा, 4 फसल और वो देखना है। जी जो बराइन अहमदिया 2 की पहली हेडिंग है मुखालिफों की जल्दी। अभी हम अब सिर्फ वही जा रहे हैं ना, हमने आगे से नहीं ना बताना कि वो दलीलें नहीं दी, ये नहीं ना भी बताना ना। नहीं, वो नहीं। दलीलें हमें पता ही नहीं है। नहीं अभी हमने नहीं पता या हम तो सिर्फ
जो ऑथर है उसके स्ट्रक्चर को वैसे के वैसा लिख रहे हैं। ओके सो बराइन अहमदिया 2 के अंदर मुखालिफों की जल्दी। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि तंजीला आपने गौर से नहीं पढ़ा, बराइन अहमदिया 1 में मैं आपको दलाइल निकाल के दिखा सकती हूँ, तो आपको क्या मुझे जवाब दोगे? कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि वहाँ कोई दलाइल नहीं है। और वो कहाँ पे है? उन्होंने जहाँ ये इश्तिहार छापा है मुखालफिन की जल्दी। हाँ, मुखालिफिन की जल्दी, वो बराइन अहमदिया का पहली हेडिंग है, यस क्योंकि लोग जो है उसको तोड़ने के लिए, कमाने के लिए पैसे पीछे लग गए थे। तो जो वो था। पहली किताब है ना, वो हजूर ने सिर्फ ये बताया है कि मैं ये किताब लिख रहा हूँ और मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं क्या चैलेंज देना चाहता हूँ। उस किताब, जो आगे वाली किताबों के बारे में उन्होंने पहली जिल्द में सिर्फ बताया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और अब नंबर 2 में उन्होंने ये कहा है कि जो मुखालिफीन है उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात का जवाब देंगे, हमारे पास दलाइल है। तो उन्होंने ये लिखा है कि अभी जल्दी ना करें, अभी तो मैंने दलाइल दिए ही नहीं। यानी यहाँ पे करेक्शन हो जाती है कि पहली किताब में कोई दलाइल उन्होंने नहीं दिया। जो लोग कहते हैं, जो हमारे भाई जो समझते हैं कि ये दलाइल है, ये दलाइल है, तो आगे से ये जिन्नात की वो तो ठीक